Good evening, everyone. I'm Ruchita, your host, and welcome to today's session of NutriLife 360. Today, we are going to learn some harsh realities and impacts on our health. We'll understand if all fats are bad, and are we having enough or are we having too much? What is the correct omega 3 to omega 6 ratio that we need to consume? To understand all this and much, much more, we have two esteemed speakers with us tonight. It is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur to start the session. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him onto this virtual stage. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. Today we're going to be talking about fats, and fats are a very important micronutrient. However, over a period of time, what happens is that when too much fat accumulates on your body tends to become lethargic, it tries to become slack. And that is why it is very important to understand that you need to build muscle and replace fat. Today, we're going to be talking a lot about omega-3, omega-6. And the one thing that really comes to my mind is that there was this experiment carried out with the Eskimos, that how come that they live in this extremely cold climate and they eat a lot of fat, and yet none of them really die of a cardiac problem. So over a period of time when this experiment went on, they realized that by default, they were eating a lot of salmon. So by default, they were consuming a lot of omega-3, and that is how they were able to balance the omega-6 and the omega-3 that they were consuming. And hence, they were absolutely free of all these cardiac problems, They didn't have cholesterol problems. They did not have, heart diseases. They did not have pressure problems. So this is something that you need to understand and take this, very, very, very seriously. As far as your body fat is concerned, if you're male, then it's got to be, below 20%. And if you're a female, it should be below 30%. But more important is your visceral fat. Is your visceral fat, anywhere close to below 6, then you're on the right track. Now, visceral fat is the fat that accumulates around your organs. And this is the most dangerous fat, which leads to health, lifestyle, and health challenges. So, guys, please work on your visceral fat, very sincerely. Try and do some abdominal exercises to keep the visceral fat down. And once you got the visceral fat in control, you'll find that automatically your holistic lifestyle would improve dramatically. It's a very important subject. It's a very important topic. So listen to, Manoj, who's going to share with you his entire experience. He was somebody who weighed above triple figures, and he had a lot of body fat. He had a lot of visceral fat, and he's someone who managed to reduce both of them. Okay, he not only lowered his weight by some insignificant amount. I mean, if you see his before and after pictures, you cannot even believe that it's possible. But more important than reducing the overall weight, he reduced the body fat and he reduced the visceral fat. And that has really improved his entire holistic health. From going to doctors with some problems, now he doesn't need to go to a doctor anymore. And he's healthy and fit, really enjoying life, going to places that he has never been, and really in control of his entire holistic health. So it's very good to listen to somebody like that. Over to you, Manoj.
थैंक यू वेरी मच फारूक, थैंक्स अ लॉट। और जो भी मेरे साथ हुआ है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि जो मैं अचीव किया हूँ मैं कर सकता। सो गाइस, कमिंग टू टुडेस प्रेजेंटेशन, आज के बारे में आज जो हम सीखने वाले हैं ये है हार्श रियलिटीज एंड मोर अबाउट फैक्ट्स। जब मैंने सबसे पहले ये बात पढ़ी थी ये टॉपिक को, तो अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से कुछ 1 साल पहले की बात है। तो मुझे लगा था कि यार फैक्ट्स की हार्श रियलिटी होगी शायद, लेकिन नहीं, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। हार्श रियलिटीज वो है जिसे हम बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन वो एक्चुअली है नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। एंड फैक्ट्स के बारे में हम कुछ ज्यादा जानेंगे। सो हार्श रियलिटी किसके बारे में? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है कि किस तरह से शक्कर, शुगर बेसिकली, फैट, प्रोसेस फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग हमारे बॉडी को और हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहा है। इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से करता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारी चीजें आप मार्केट में देखते होंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पैकेजिंग के साथ में अच्छे अच्छे शब्दों के साथ लिखा हो, है ना। जैसे क्या, लो फैट, 90% दिस, 0% दैट, है ना। ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, लेकिन उनके हकीकत क्या है? जैसे कि एक सॉस की बोतल है, उसके 100 ग्राम के अंदर 6 क्यूब शक्कर है ना। 1 क्यूब शक्कर मतलब कितना? 1 क्यूब शक्कर मतलब तकरीबन 4 से 5 ग्राम, मतलब 30 ग्राम हर 100 ग्राम में शक्कर। ऑरेंज जूस जो बोलते हैं, है ना, हम रियल है या अनरियल है जो भी है, 500 ग्राम के अंदर तकरीबन 50 ग्राम शक्कर, 10 क्यूब। एनर्जी बार जिसे बोला जाता है ना, बहुत हम चाव से खाते हैं कि इसमें प्रोटीन बार है, एनर्जी बार है, या फिर चॉकलेट बार, जो भी आप ले लो, तकरीबन 6.5 क्यूब, 30-32 ग्राम शक्कर। एप्पल साइडर विनेगर, बहुत हम अच्छे से हेल्दी समझ के पीते हैं उसको, हर 100 ml पे 5 क्यूब, विच इज अराउंड 50 ग्राम। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर चीज के अंदर कितना शक्कर भरा हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड। ये ना एक्चुअली मार्केटिंग टेक्निक है, ये आपको अच्छे पैकेजिंग में अच्छी चीजें दिखा दे। हालांकि अगर आप देखोगे तो नेचर ने हमें कोई चीज इस तरह से पैक करके नहीं दी, ये बाद में इजाद हुआ है, बाद में आई है मार्केट में। और जब मार्केट में आई है तो मार्केटिंग के लिए आई है। आप देखो किस तरह की अच्छी अच्छी चीजें लिखे रहते हैं, फैट फ्री, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, फोर्टिफाइड वाटर, है ना, सीरियल विथ लॉट ऑफ फाइबर एंड फलाना डिगना जो भी है। बट जब आप उसके पैकेट को पढ़ोगे तब आपको उसके अंदर पता चलेगा कि उसके अंदर कितना शक्कर है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना उसके अंदर कलर डाला हुआ है, आर्टिफिशियल कलर, कितना उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है जो आपके लिए खतरनाक है। तो इन सब चीजों का हमारे शरीर के अंदर फर्क क्या पड़ता है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शक्कर से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाई इम्पैक्ट ऑफ शुगर जो हमारे लिए जो है सबसे बेकार, ये हमारे अंदर एक गलत हैबिट डाल देता है। हमारे स्वीट टूथ कहते हैं कि हम एक मीठे के लिए हम लालायित रहते हैं हमेशा, कि हमेशा हमको खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। इसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट है हेल्थ के, जिसके वजह से बहुत सारे, क्योंकि ये सिर्फ शक्कर ही शक्कर होता है, इसके अंदर कोई और दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं होता, सिर्फ कैलोरी होती है भरी हुई उसके अंदर। तो जिसके वजह से आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, सिर्फ कैलोरी मिलती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपके अंदर आ जाती है, और आपके आस्ते आस्ते कोई भी जो डिजीज चालू होता है आपके शरीर के अंदर, वो आहिस्ते आहिस्ते तो क्रॉनिक डिजीज में बदल जाता है। आपके लीवर के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है, और ये बहुत एडिक्टिव होने की वजह से आप ग्रेटर डिप्रेशन में जा सकते हो, और ये आपके एजिंग को बहुत इफेक्ट करता है।
मतलब समय से पहले बूढ़ा दिखना, जिसको बोलते हैं ना उम्र और आपका चेहरा, ये दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। शक्कर उसका मेन कारण। आप उम्र से पहले आपको झुर्रियां आना, उम्र से पहले आपकी स्किन को लूज होना, ये सब शक्कर के कारण। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो हेल्थ में इफेक्ट कैसा आता है उसका? हमारे गट हेल्थ में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं गट के, उसमें इम्बैलेंस आने लग जाता है। मतलब कहीं पर अच्छे कम हो जाते हैं, बुरे बढ़ जाते हैं। अच्छों की जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है वो कम होने लग जाती है। आपके गट की मोबिलिटी को डिस्टर्ब करने लग जाता है। गट की मोबिलिटी को डिस्टर्ब करना मतलब जो हमारा खाना है, जो हम खाते हैं, तो जिस तरह से पूरा गट के अंदर घूमता है वो, मतलब चल चल के जाता है आगे आगे, इसको डिस्टर्ब करता है। आप इसको इस तरह से देखिए, अगर कोई टायर है जिसमें हवा अच्छी तरह से भरी हुई है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं खाने के अंदर, और एक एक टायर है जिसके अंदर हवा कम है, जो कम हवा वाला टायर है वो गाड़ी को अच्छे से नहीं चलाएगा, वो अच्छे से गाड़ी नहीं चलेगी, उसी तरह से आपका खाना अंदर से मूव नहीं होगा। और ये सारी चीजें आपके वेट गेन के अंदर, वेट गेन में मदद करती है, वेट गेन में मदद करती है, याद रखना, वेट कम करने में नहीं कहा मैंने। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे आते हैं जानने के लिए कि जिस तरह से अभी हमने शक्कर के बारे में समझा, अभी जरा हम फैट के बारे में समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ हाई फैट ऑफ हेल्थ क्या हमारे शरीर पे क्या होता है, और कहाँ कहाँ से हमारे को फैट मिलता है जो हमें पता नहीं चलता। सलाद की ड्रेसिंग सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास है, मायोनीज, है ना, सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। रसन सलाद में खाता हूँ बहुत, लेकिन उसके अंदर मायोनीज बहुत होता है, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। ओके, प्रोसेस फूड जो भी स्नैक्स हैं पैक हैं, आप उसको पीछे पढ़िए कि उसके अंदर कितना फैट कंटेंट है, और स्पेशली सैचुरेटेड फैट कंटेंट। हालांकि वो शक्कर में तो हाई होता ही है। एनर्जी बार के अंदर कितना है फैट, वो देखिएगा। शुगर फ्री आइसक्रीम के अंदर कितना फैट है वो देखिएगा। हम जो बाहर खाना खाते हैं उसके अंदर कितना तेल यूज करते हैं, कितना घी यूज करते होंगे। ओके, वो देखिए आप। हम कितना डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं वो देखिए आप। तो ये सारी चीजों से हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ के ऊपर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे सारे फैट हमारे शरीर के लिए खराब है। अगला स्लाइड। और ऐसा भी नहीं है कि हमें फैट बिल्कुल नहीं खाना। ओके, तो अलग अलग टाइप के फैट हैं, कुछ अच्छे फैट हैं, कुछ खराब फैट हैं। आप इसमें देख सकते हो कि अच्छे फैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। एवोकाडो है, एग है, कोकोनट ऑयल है, रॉ नट है, ऑलिव ऑयल है, सैल्मन है। अभी फरूक जी ने एग्जांपल दी कि सैल्मन की वजह से एस्किमो लोगों के हेल्थ में कैसा इम्पैक्ट आए, पॉजिटिव इम्पैक्ट। फ्लेक्सीड है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, ऑर्गेनिक बटर, ऑर्गेनिक नट ऑयल्स, है ना। और खराब फैट में देखिए आप, मैगरीन, फ्रेंच फ्राइज, इसके अंदर जो फैट है, डोनट्स, कुकीज, पेस्ट्रीज, क्रैकर, प्रोसेस मीट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। हाइड्रोजनेटेड ऑयल मतलब जिसे हम डालडा कहते हैं, है ना। देसी घी तो प्योर घी हुआ, जो दूसरा घी है मतलब, है ना, जिसे कहते हैं। इसके अंदर जो फैट है वो खराब फैट। तो हाई फैट और गट हेल्थ का क्या है रिलेशन? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हमने हाई फैट खाया तो हमारे डाइजेशन स्लो होगा, हमारे गट माइक्रोबायोटा, मतलब वही अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। गट में इन्फ्लेमेशन होगा। गट की मोटिलिटी जो मैं आपको पहले बताया कि किस तरह से खाना आगे आगे जाता है, वो फर्क पड़ता है। बाइल प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ता है। बाइल प्रोडक्शन बेसिकली फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है, जो लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है। तो अगर इन सब चीजों को देखो, फर्क देखिए आपके शरीर में कहाँ कहाँ से आता है। अगर आपका बाइल प्रोडक्शन अगर खराब हो गया या कम ज्यादा हो गया, आप फैट को नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे या डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से और कई तकलीफें आ सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखते हैं प्रोसेस फूड की हार्श रियलिटी। प्रोसेस फूड
स्पेशली अगर हम जब भी प्रोसेस फूड की बात करते हैं तो एक बात समझ जाइए कि दो टाइप के प्लांट है। प्लांट वर्ड आपने सुना होगा, दो प्लांट होते हैं। एक प्लांट है जो पेड़ पौधे हरे, और एक दूसरा प्लांट है जो अकाउंट्स वाले समझ जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी जिसको बोला जाता है, फैक्ट्री जिसको कहा जाता है ना। तो हमें खाली इतना ध्यान रखना है कि जो नेचुरल प्लांट है, मतलब पेड़ पौधे जो है वहां से जो भी आए उसको खाइए, और जो फैक्ट्री से आ रहा है उसे नहीं खाइए, उस प्लांट को मत खाइए। सो एकदम क्लियर कट आपके लिए, एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं बता दूं, क्योंकि जो फैक्ट्री से आने वाला है उसमें देखिए क्या होगा। एक ब्रेड है जो फैक्ट्री से आ रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिर्फ कैलोरी है। आर्टिफिशियल एडिटिव्स हैं, उसके अंदर कोई टेस्ट डाल दिया होगा, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दिया होगा, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब करेगा आहिस्ते आहिस्ते, आपके गट माइक्रोबायोम को खराब इम्बैलेंस करेगा। और ये ना एडिक्टिव होते हैं। एडिक्टिव मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एक खा लिए तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, नहीं। आप एक खाओगे तो आपको लगेगा दूसरा भी खाना है, तीसरा भी खाना है। तो ये एडिक्टिव नेचर के होते हैं। आपने अभी 3-4 स्लाइस खा दिए, थोड़ी देर बाद वापस आपको लगेगा और खा लूंगा। ओके। और इसके अंदर कई ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो छुपे हुए आपको पता ही नहीं चलते। किसी भी पैकेट को लेके पढ़िएगा आप कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव कौन सा डाला गया है, क्लियर नाम ही नहीं होगा। उसके अंदर कौन सा कलर डाला हुआ है, कुछ नाम नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं। अब आगे आते हैं अगली हार्श रियलिटी ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शराब खराब है ना। सबसे पहली चीज तो ये बहुत हाईली कैलोरी डेंस ड्रिंक है। 1 ग्राम में 7 कैलोरी, इमेजिन करिए। शुगर के अंदर 1 ग्राम में सिर्फ 4 कैलोरी। ये तेल के नजदीक है, फैट के नजदीक है। फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरी, इसमें 7 कैलोरी। अल्कोहल ज्यादा लेने से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, इससे आपके मेमोरी में इम्पैक्ट आता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसके वजह से विटामिन बी की कमी होने लग जाती है बॉडी के अंदर, जिसके वजह से मेमोरी में इफेक्ट आता है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का कारण बन सकता है। अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीमारियों के कारण बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा पीने से आप, बहुत लोग मरते भी हैं, है ना। और इसका जो सबसे मेन इफेक्ट पड़ता है वो है हार्ट पे। ओके। ये शराब के ज्यादा पीने के लक्षण, ज्यादा पीने से होने वाली तकलीफ या परेशानियां है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह से अगली जो हार्श रियलिटी है वो है स्मोकिंग की। ज्यादा सिगरेट पीने वाले या स्मोक करने वालों का फिजिकल अपीयरेंस देखें, दे विल नॉट लुक चार्मिंग। और जिस तरह से एक फर्स्ट हैंड स्मोकिंग होता है, मतलब जो आदमी डायरेक्ट पी रहा है और उसका धुआं अगर किसी के शरीर में जा रहा है सांस के थ्रू, तो वो सेकेंड हैंड स्मोक है, पैसिव स्मोकिंग जिसको कहा जाता है। वो भी उन लोगों के लिए खराब है। तो सिगरेट पीने वाला अपनी सेहत को तो खराब कर ही रहा है, प्लस दूसरे का भी हेल्थ रिस्क। इसको तो मैं भूल ही नहीं सकता। मेरे डैडी जो स्मोकिंग करते थे, ही डाइड विद लंग कैंसर। डॉक्टर ने बताया था कि वही रीजन है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं। सेम चीज, जैसा शक्कर ज्यादा खाने से आपकी एजिंग जल्दी होती है, उसी तरह से सिगरेट से भी आपकी एजिंग जल्दी होती है। आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में ये हर्डल पैदा करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बराबर से नहीं होते। और सेम माइक्रोबायल डाइवर्सिटी कम हो जाती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि जो अच्छे बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया जो होने चाहिए, उनमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम इन सब चीजों को टोटल करें कि हाई इम्पैक्ट ऑफ शुगर, फैट, प्रोसेस फूड, सिगरेट या बाकी सारी चीजें का इनके अपने शरीर में अलग अलग जगह पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि किसी किसी का प्रोसेस फूड क्या करता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है,
सोडियम ज्यादा होता है तो अपने बॉडी के अंदर वो पानी को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से किडनी को ज्यादा जोर से काम करना। लीवर को जितने भी टॉक्सिन आप बॉडी के अंदर डालते हो उसे साफ करना पड़ता है, तो उसके काम करने के लिए उसके ऊपर और प्रेशर पड़ता है। ज्यादा फैट खाओगे तो सबसे पहले ज्यादा कैलोरी अगर आपने खा लिया तो कन्वर्ट करके फैट को सबसे पहला लीवर अपने ऊपर जमा करता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो सकता है। आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है क्योंकि आपको हर जगह खून पहुंचाने के लिए और ज्यादा उसको प्रेशर करना। आपके पैनक्रियास को काम करना, क्योंकि पैनक्रियास से जो शुगर है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या सही जगह पहुंचाने के लिए जो इंसुलिन की जरूरत है वो पैदा करना। तो ये इस तरह से सारे जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं उसकी वजह से हमारे जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और नॉन दिलेस अगर आप बीच में एक फोटो देखोगे तो आपके सेहत को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, आपके मोटापे का कारण बन सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। हमें फिटनेस की जगह पे वेलनेस को चूज करना है ना। हेल्थ इज वेल्थ, ये आपने सबने सुना होगा। आपको स्वीट मीठे चीज को छोड़ने के लिए फैट को ना कहना है। मेरा एग्जांपल मैं देता हूँ, 1994 से लेके 2012 तक एवरी डे बम्बई में 2 वड़ा पाव, और क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत हुआ करता घूमता रहता था, कम से कम 2 वड़ा पाव दिन का। इमेजिन करिए कितना ट्रांस फैट मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है। आज की डेट में आप मेरे सामने कढ़ाई के कढ़ाई तल लो, मुझे कुछ फर्क नहीं। सेम चीज, बिकॉज वो फैट, जो फैट है वो फैट बेकार, वो फैट बेकार। वैसे हमको फैट चाहिए, कितना खाना है, कैसा खाना है, क्या खाना है तो हम बाद में बताएंगे आप, लेकिन वो वाला फैट सबसे खराब। ओके, फ्रॉम फार्म टू फोक, जैसे कि मैंने आपको बताया, फार्म मतलब प्लांट, प्लांट से लेके आपके खाने तक, प्लेट तक, उसको करिए। स्किप दी प्रोसेस फूड, स्किप प्रोसेस फूड मतलब वो वाला प्लांट, फैक्ट्री वाला, उसको छोड़ दीजिए। एकदम सिंपल है लाइफ। अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओगे, वहां पर आपको हरी सब्जी जल्दी नहीं दिखेगी। वहां पर आपको पैक किए हुए एकदम रंग बिरंगे पैकेट के साथ में सारे काउंटर सजे हुए दिखेंगे, जो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। टाटा बाय बाय करके आगे निकल। ओके, शराब मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए। यही 4-5 चीजें आपने करनी है अगर अपने सेहत को अगर हमको अच्छा रखना है। शक्कर के लिए ना, हाई फैट के लिए ना, फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट के पैक प्रोडक्ट के लिए ना, शराब के लिए ना, और सिगरेट के लिए ना। तो अभी हम आगे जाते हैं और समझते हैं दूसरे टॉपिक को आज का, जो कि है फैट के ऊपर। और क्या होता है, कैसा होता है, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले समझ लें कि फैट्स होते क्या हैं। फैट एक हमारे बॉडी के लिए की न्यूट्रिएंट है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, टोटल 5 न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं। 5 न्यूट्रिएंट मतलब माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट मिला के, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स और फैट। तो फैट ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के लिए खराब है, बिल्कुल नहीं। ओके, फैट हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है वो समझना। और उससे ज्यादा खाओगे तो खराब, बिकॉज एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। फैट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब उसके अंदर एनर्जी बहुत है जो हमारे को काम करने के लिए डेली के लिए चाहिए होती है ना। हमारे शरीर, हमारे 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 ऑर्गन्स को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए फैट से आता है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपको 1 ग्राम देता है 4 कैलोरी, लेकिन फैट आपको देगा 9 कैलोरी। तो है वही 1 ग्राम, लेकिन उसके अंदर 9 कैलोरी। ओके, मोर देन डबल। ये लिपिड का एक पार्ट है, छोटा सा। ये भी इसके अंदर हम ज्यादा जाएंगे नहीं, अदरवाइज बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा लिपिड क्या है कैसा है। बट एक लिपिड का एक पार्ट, हमारे शरीर में बहुत सारे लिपिड है, बट उसमें से एक फैट।
फैट्स आर लाइक हमारी बॉडीज बैकअप बैटरी। अगर जब हम किसी दिन उपवास पे रहते हैं या हम कभी खाना नहीं खा पाते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी को जो एनर्जी देने का काम करता है वो फैट करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फैट पड़ा हुआ है। ओके, लेकिन क्योंकि हम एक दिन से ज्यादा भूखे नॉर्मली नहीं रहते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें फैट भर के रखना है अपने शरीर के अंदर, बिल्कुल नहीं। ओके, और फैट प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स में मिलता है, इसके ऊपर हम आगे आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड। फैट हमारे शरीर में काम क्या करता है? बहुत सारे काम है। ये एनर्जी का सोर्स है, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कराने के लिए काम करता है। इसके ऊपर मैं थोड़ा और आगे बात करूंगा जब हम एक पर्टिकुलर टाइप के फैट की बात करेंगे। ये सेल फंक्शन के लिए काम करता है, ये हार्मोन प्रोडक्शन के लिए काम करता है, ये ब्रेन फंक्शन के लिए काम करता है, ये हमारे जो सॉफ्ट और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उसको कुशनिंग देता है। अगर उनके आजू बाजू में फैट हो तो वो उसको डैमेज होने से बचाने की कोशिश करता है। ओके, ये इंसुलेशन और प्रोटेक्शन देता है, और ये हंगर और सैटिस्फैक्शन को भी रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कितने टाइप के फैट होते हैं? बेसिकली दो टाइप के हैं, डाइटरी फैट, नॉन एसेंशियल फैट है, और एसेंशियल फैट। नॉन एसेंशियल फैट मतलब वो फैट जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए या बहुत कम मात्रा में चाहिए, अगर मैं ना बोलूं तो भी चाहिए। ओके, सो सैचुरेटेड फैट, इसमें तीन टाइप के, सॉरी डाइटरी नॉन एसेंशियल फैट में तीन टाइप के फैट हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट वो फैट है जो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड हो, जैसे कोकोनट ऑयल, बटर, घी, या फिर मीट के अंदर का, या फिर आप उसको, ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन अगर आप उसको रेफ्रिजरेट में डालोगे तो वो सॉलिड हो जाएंगे, जैसे कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, अवाकाडो, सिसम ऑयल, राइसब्रान ऑयल, जितने टाइप के ऑयल नॉर्मली जो हम खा रहे हैं वो चीज। ओके, ये बॉडी के अंदर बनते हैं, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं बॉडी के अंदर, और क्योंकि ये बॉडी के अंदर बनते हैं इसीलिए ये नॉन एसेंशियल में आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को उसको बाहर से जरूरत नहीं है लेने की। ओके, ट्रांस फैट एक ऐसा फैट है जो बॉडी बनाती तो नहीं है लेकिन हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। सिंपल टर्म्स से आपको समझ आइए, जितने भी आप भजिया, पकोड़ा, वड़ा, समोसा जो बाहर खाते हो तला हुआ, उसके अंदर जो होता है वो ट्रांस फैट होता है। अभी आप बोलोगे यार वो तो वही फैट है जो हम नॉर्मल तेल है उसी में तो पक रहा है, वो उसी में पक रहा है, लेकिन बार बार पकने की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। ओके, एसेंशियल फैट में बेसिकली दो टाइप के फैट आते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, जैसा सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सेसम ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और जो हम नट्स और सीड्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हमने पढ़ा अभी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये दो टाइप के फैट हैं। ये हमारी बॉडी बनाती नहीं है तो इसलिए हमें बाहर से खाना हो। ओमेगा 3 आपको फिश से मिल जाएगा, आपको फ्लैक्स सीड से मिल जाएगा, चिया सीड से मिल जाएगा, वॉलनट से मिल जाएगा। ये दो तीन टाइप के बेसिकली होते हैं, ALA, EPA, DH। इसके बहुत सारे बेनिफिट, आप 5 बेनिफिट तो आंख बंद करके रख सकते हो, और 5 छठा सातवां तो बोनस है। ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, ये आपकी आंखों के लिए अच्छा है, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके जॉइंट के लिए अच्छा है। ओके, और ये आपके ब्लड को पतला रखने के लिए भी अच्छा है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये मैं आता हूँ अभी, जब आपको फैट ओमेगा 6 बता दूंगा उसका बता। और ब्रेन फंक्शन तो मैं आपको बता ही दिया क्योंकि ब्रेन के लिए अच्छा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी पे आता हूँ, उसमें ध्यान रखिएगा। ओमेगा 6 फैटी एसिड ये आपको कहाँ से मिलता है? एग, वेजिटेबल ऑयल, जो भी ऑयल आपके किचन में है ना आज की डेट में, वो सब में है। ओके, इसके दो टाइप है बेसिकली, लिनोलेक एसिड और एराचिडोनिक एसिड।
ये आपके सेल्स को बनाने का काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए कहते हैं कि फैट जरूरी है। तो ओमेगा 6 जो है, जैसे कि हमें क्या हमें पता है कि बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है सेल, और सेल बनाने के लिए बेसिकली आपको 3 चीजों की जरूरत है, प्रोटीन, फैट और वाटर। तो जो फैट है वो फैट है ओमेगा 6। ओके, ना ये इसमें एक बात थी एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन ओमेगा 6 जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी। फर्क क्या है? फर्क ये है, आप ध्यान देंगे कभी कि अगर आपको सर्दी खांसी हुई है, जब आपका डॉक्टर आपको मुंह खोलने बोलता है आ करो, और फिर आपके अंदर टॉर्च डाल के देखता होगा, तो लास्ट में उसे लाल कलर का कुछ दिखता है, आपको भी निगलने में दुखता होगा, है ना, थोड़ा पेन होता है गले पे जब बहुत सारी खांसी होती है उसके बाद। वो बेसिकली और कुछ नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। ओके, ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को घटाता है। तो जब भी, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपके फैक्ट आपके घर पे ओमेगा 6 है, क्यों है वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम ओमेगा 6 बहुत ज्यादा खाते हैं। क्योंकि डॉक्टर को पता है आपके घर पे ओमेगा 6 ज्यादा है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि आप तेल की चीजें मत खाइए कुछ दिनों तक। लेकिन अगर आपने उसी वक्त अगर ओमेगा 3 खाया जाता, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसके रिवर्स में काम करता है, उसको ठीक करने का काम। ओके, इस कारण थोड़ा और आगे बात करेंगे, थोड़ा अगर मिल गया तो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ओमेगा 3 ओमेगा 6, क्योंकि हमें पता है दोनों खाना है, लेकिन खाना कितना है, वो रेशो है 1:2। लेकिन हम खाते कितना है? हम खाते हैं 1:7। इतना ज्यादा हम खाते। अगला स्लाइड प्लीज। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेस क्या है। तो एक है प्लांट बेस्ड सोर्स और दूसरा है मरीन सोर्स। ओके, प्लांट बेस्ड सोर्स जो है उसको बोलते हैं एल, और मरीन सोर्स है वो ईपीएडीएच। आपको नाम याद नहीं रखना, मत रखिए, सिंपल शब्दों को याद रखिएगा कि प्लांट बेस्ड सोर्स आपका बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट किस पे करेगा वो? सबसे पहले एएलए से ईपीएडीएचए पे कन्वर्ट। ईपीएडीएचए डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, लेकिन प्लांट बेस के अंदर ईपीएडीएचए नहीं मिलता, प्लांट बेस के अंदर मिलता है एएलए। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट सेंटेंस में अगर मैं बोलूं, प्लांट बेस वाला जो ओमेगा 3 है हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उससे पहले ईपीडीएचए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी डायरेक्ट पूरा कन्वर्शन नहीं करेगा, अराउंड 10 से 15% कन्वर्ट करता है, और फिर वो भी सही रेशियो में नहीं होता, क्योंकि ईपीडीएचए का भी एक पर्टिकुलर रेशियो, उस रेशियो में होगा तो हमारा बॉडी उसे अच्छी तरह से यूज कर सकता है और उसके हेल्थ बेनिफिट सबसे ऑप्टिमम लेवल पे होंगे। ओके, तो इसीलिए ये माना जाता है कि मरीन सोर्स का जो ओमेगा होगा दैट इज द बेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे देखते हैं हमें खाना कितना है। जैसे कि हमें बताया, हमें पता है कि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, 1:20 के रेशियो में हम खा रहे हैं, मतलब ओमेगा 3 1 खाते हैं, 1 ग्राम खाते हैं, तब तक हम 20 ग्राम ओमेगा 3 खा चुके हो। खाना कितना एक्चुअली 1:2। अब दो तरीका है, या तो ओमेगा 6 को आप कम कर दो। कितना कम करोगे? आप खा ही रहे हो ओमेगा 3 बहुत कम, अगर उसका सिर्फ डबल खाना है आपको तो फिर तो आप उतना कम कर ही नहीं। तो दूसरा तरीका ये है कि उसको कम करिए, साथ में थोड़ा ओमेगा 3 बढ़ाइए। ओके, यहाँ पर भी आपको देखेंगे, यहाँ पर राइट साइड में एक फोटो लिखा है, ओमेगा 6 जो है वो, ओमेगा 6 अगर कम होगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, और ओमेगा 6 अगर बढ़ेगा तो वो इन्फ्लेमेटरी बढ़ाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक चार्ट है, बार चार्ट, जिसमें ये बताया गया कि कौन सी चीज, कौन सा फैट सबसे ज्यादा किन किन चीजों में। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो इसको पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अगला स्लाइड प्लीज। अभी हमें देखना है कि अगर हम, ये जो बैलेंस है ओमेगा 3 ओमेगा 6 की, अगर वो बराबर नहीं है तो क्या हो? आप खाली ये समझ जाइए कि इसके वजह से बहुत सारे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हिंदुस्तान के अंदर फैल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। 53% जो अप्रोक्सीमेट डेथ है इंडिया के अंदर, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वो जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। जैसे अगर मुझे अगर डायबिटीज है सपोज, तो मेरे वजह से मेरी वाइफ को डायबिटीज नहीं होगी, या किसी को भी। अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो मेरी वजह से किसी और को ब्लड प्रेशर नहीं होगा।
इसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल, ये अपने अंदर से पैदा होती है। और अंदर से क्योंकि पैदा इसलिए क्योंकि हमने अंदर ही सब कुछ सिस्टम बिगाड़ रखा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक स्लाइड है जहां पे आपको दिखेगा कि ओमेगा 3 की अवेलेबिलिटी कहां कहां पर है। जो लाल कलर है वो सबसे कम है, हिंदुस्तान को आप देखोगे लाल कलर में है। जो ग्रीन कलर है वो एडिक्वेट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे बर्फ ज्यादा है, ठंड ज्यादा है। क्योंकि ओमेगा 3 के लिए भी जैसा EPA DHA अच्छा होना चाहिए, EPA DHA अगर अच्छा होना चाहिए तो कहाँ से आपको मिलेगा? वो मिलेगा मरीन सोर्स। तो मरीन सोर्स तो हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान के भी मतलब आधा हिंदुस्तान तो समुद्र से घिरा हुआ है। तो क्या वहां से मिलना वो मछलियों का तेल अच्छा रहेगा? जी नहीं, मछलियों का तेल वो अच्छा रहेगा जो चिल्ड वाटर की फिश होंगी। अब चिल्ड वाटर मतलब कितना? किसी के लिए 5% चिल्ड है, किसी के लिए 10% चिल्ड। लेकिन उसका जो पैमाना है वो ये पैमाना है कि जहां पर ग्लेशियर होता है जो 0 डिग्री पे होगा, तो 0 से कम पे होगा, उसके नीचे जो पानी होगा उस पानी के अंदर जो फिश होंगी उसका सबसे अच्छा ओमेगा 3 ऑयल निकलेगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो सारा ग्रीन बेल्ट जो है ऊपर मेजॉरिटी मोर देन 90%, 95% है, वो सब उसी जगह पे जहां पर बर्फ ज्यादा है। एंड दैट इज द रीजन कि उन लोगों को ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मिल जाता है और अच्छे क्वांटिटी में और अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है। नेक्स्ट लाइन। हमें कब खाना चाहिए ओमेगा 3? बट ऑब्वियस, सबसे पहला फूड जो हमारा होना चाहिए उसके अंदर हमारा हेल्दी फैट इंक्लूड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रात भर हमारे बॉडी में रिपेयर का काम हुआ है, जिसके वजह से रात भर बॉडी में रिपेयर का काम हुआ है, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं। तो उसको फिलअप करना है। सुबह उठ के हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, इसके लिए उसके लिए हमें फैट की जरूरत है। सुबह सुबह हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होती है, पचाने की जो क्षमता होती है, वो अच्छी रहती है। इसके लिए हमें खाना उस वक्त देना है। और सुबह सुबह न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, उसके लिए हमें खाना देना है। और सुबह सुबह बाइल सिक्रेशन भी अच्छा होता है, इसीलिए फैट वाला आइटम हम सुबह सुबह खा लें सबसे बढ़िया है। क्योंकि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कब कब खाना चाहिए? एक मॉर्निंग पे, क्योंकि सुबह हमारे बॉडी के रात को जो रिपेयर काम हुआ उसकी वजह से कम हो चुका है। और शाम को, क्योंकि रात को भी रिपेयर होना है तो उसके लिए भी चाहिए अपने को। सो दैट इज वाई ओमेगा 3 ट्वाइस इन अ डे मिनिमम। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ फैक्ट्स फैट के बारे में। रीहीटिंग ऑफ ऑयल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो तल के बेचते हैं एक ही ऑयल के अंदर कम से कम 15 बार, 25 बार, 30 बार वो खाने को तल के बेचते हैं, वो तेल बेकार है। क्योंकि तेल का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, वो नॉर्मल तेल से ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, हिडन फैट्स, कई चीजें ऐसी लगती है जिसमें हमें लगता है कि बिल्कुल भी तेल नहीं या बिल्कुल भी फैट नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारा फैट है। खास करके जो बेकरी के प्रोडक्ट उसके अंदर। ओके, कोल्ड प्रेस ऑयल सबसे बेस्ट होता है, जो हमारा पुराना तरीका था जिसको हम लोग कोल्हू से निकालते थे तेल, है ना, मतलब बीज को डाल दिया और फिर उसको प्रेस करके निकाला तेल, वो सबसे बेस्ट है। रिफाइंड ऑयल के लिए भी नो नो होना चाहिए, क्योंकि उनको रिफाइंड ऑयल को इम्प्योरिटी निकालने के लिए और तेल निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेसों से गुजरना पड़ता है, जिसके उसके जो उसके नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल भी खराब है। बेक्ड आइटम के अंदर बहुत सारा तेल है, वो खराब है। रीहीटेड ऑयल जो बार बार यूज करते हैं वो खराब है। सबसे बेस्ट है कोल्ड प्रेस ऑयल। ओके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप जो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। आपको तेल का खाना कंजम्पशन कम करना चाहिए। कितना करना चाहिए? मेन के लिए 25 ग्राम अ डे और वुमेन के लिए 20 ग्राम अ डे। ओके, अनसैचुरेटेड फैट को अपने उसमें खाने में इंक्लूड करिएगा।
rather than saturated fat. और डीप फ्राई करने के बजाय आप ग्रिल कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। और कोई भी फैटी सॉस को, जो भी अपने हम डिप्स लेते हैं, तो फैटी सॉस के जगह पे हम लेमन जूस, विनेगर या स्पाइसेस या हर्ब्स कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं। और फैटी सॉस का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा, मायोनीज। ठीक है, विग्नो यूज के ब्लेंड्स यूज कर, ऑयल के ब्लेंड्स यूज करिए। इसका मतलब यह है कि आप अलग अलग तेलों को यूज करते रहिए। जैसा एक बार आपने नारियल तेल यूज कर लिया, अगली बार आप कोई और तेल यूज करिए, अगली बार कोई और तेल यूज करिए, तो आपको हर एक तेल का अलग अलग बेनिफिट उसको मिलता जाएगा। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए एक टिप है छोटी सी, कि चिकन का स्किन निकाल के करिएगा, खाइएगा, क्योंकि उसके अंदर फैट ज्यादा होता है। चिकन के लेग पीस जो कि सबसे ज्यादा खाया जाता है, उसके अंदर भी फैट ज्यादा होता है, तो उसको भी अवॉइड करिएगा। और जो मीट वगैरह है उसके अंदर जो फैट की लेयर लेती है या फैट लगा हुआ होता है, उसको निकाल के आप यूज कर सकते हो खाना बनाने के लिए। ये छोटे छोटे टिप्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कि क्या आपको पता है कि हमें कितना ओमेगा 3 खाना चाहिए? मेल के लिए है, जेंट्स के लिए ओमेगा 3 1600 mg, और फीमेल्स के लिए 1100 mg पर डे। okay? आपको ये खाना चाहिए। ये आपके जो 5 चीजें मैंने आपको बोली थी, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, ये आपके जॉइंट के लिए अच्छा है, ये आपके आंख के लिए अच्छा है, और जो ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर उसके लिए अच्छा है। यहाँ पर मैं एक और चीज जिसके बारे में ऐड करूंगा, जो पांचवा और छठा मैंने बोला था। छठा वो था कि आपको पता होगा कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जो अपनी बॉडी है, बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है सेल, अगर हर सेल हमारे शरीर का अच्छा रहा तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, है ना। और हर सेल अगर इतना इंपॉर्टेंट है, तो हर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के लिए एक सिक्योरिटी भी होती है। तो हर सेल की सिक्योरिटी को मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के साथ ओमेगा 3 का वसीला है। वसीला ये महाराष्ट्रियन वर्ड है। वसीला मतलब पहचान। जिस तरह से आप कहीं जाओ और आपकी पहचान हो तो आपका काम आसान हो जाता है, उसी तरह से हर सेल के मेम्ब्रेन के साथ ओमेगा 3 का पहचान है। बोलने का मतलब यह है, ओमेगा 3 जो भी न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगा अपने साथ, मेम्ब्रेन बिना रोक टोक के उसको अंदर जाने दे। आप इमेजिन करिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन के लिए ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है। आप खा लो टन भर के, लेकिन अगर आपके सेल तक नहीं पहुंचा अच्छी तरह से वो, और जल्दी इफेक्ट नहीं मिलेगा। ओमेगा 3 वो भी काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके पास मैं बताता हूँ किस चीजों में कितना ओमेगा है, और अगर आपके दिन का ओमेगा अगर आपको पूरा करना है तो क्या चीज कितनी खानी पड़ेगी। अगर आपको एक दिन का ओमेगा पूरा करना है आपके खाने से, तो आपको 100 अंडे खाने पड़ेंगे। नहीं खा सकते कोई बात, 31 गिलास दूध पीना पड़ेगा, 31 ग्लासेस ऑफ मिल्क। 98 आपको खजूर खाने पड़ेंगे, तकरीबन 100। 46 कप आपको चना खाना पड़ेगा। खा पाओगे? बाजरा अप्रोक्सीमेटली 57 कप। नहीं, ये हार्ड तरीका है आपके 1600 mg पर डे पूरा करने का, ओमेगा 3 का। तो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है सैल्मन ओमेगा फ्रॉम न्यूट्रीलाइट। इसके अंदर सारी वो क्वालिटियां जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। ये उन मछलियों से निकलता है जो मछलियां वहां पर, कहां पर, ग्लेशियर के नीचे। इमेजिन करिए, क्या आप वहां जाके मछलियां खा सकते हो? बिल्कुल आसान है, इसको खा लो। तो नेक्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए रोज उठ के सुबह ऊपर वाले को धन्यवाद, और उसके बाद अपना अच्छा न्यूट्रिशन खाइए। उसके बाद हमारे लाइफ के इंटेंशन क्लियर होने चाहिए, उसको याद करना चाहिए, कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए, और एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सारे काम करते रहो, हमसे जुड़े रहो, हमको सुनते रहो। कुछ सवाल हैं जरूर पूछेगा, हमेशा फरूक जी अवेलेबल रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं।
और अब जो खाते हैं उस प्लेट को शेयर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रुचिता। थैंक यू। Wow, that was so amazingly explained. Thank you so much, Manoj. And I think सबको काफी clear हो गया है कि fats are not exactly all bad. It's just the ratio and the quantity that we need to control. With that, we come to an end of the session. If anybody has any questions, they may please unmute themselves and ask. All right. I see no questions. Thank you, everyone. You've been a great audience, and see you in the next session, which will be on Friday. Till then, bye bye. Keep safe. Good night.